Hello everyone. So our today's topic is Bode plot. Let us understand what is Bode plot. Bode plot is a frequency response of a transfer function. It is a graph between magnitude versus log omega and phase angle versus log omega. The Bode plot generally consists of two plots. That is, the first plot is magnitude plot and the second plot is phase plot. From this plot, we have to calculate gain margin, phase margin, grain cross frequency, that is omega gc, phase cross frequency, that is omega pc. Now from this value we have to determine the stability of the given system. So the conditions for the stability of the system is phase margin should be positive value. This is the first condition, and the second condition is omega gc is less than omega pc. These are the two conditions for the stability of the given system. Uh, Generally, Bode plot questions are asked in engineering 6th semester. So for the better understanding of the Bode plot, let us take an example. Draw the Bode plot and check the stability of the system. So this is the question. G of h is equal to k bracket 1 plus s upon 100 upon s into bracket 1 plus s into bracket 1 plus s upon 10. So this is the question. So let's see the solution of the question. First of all, we do the formulation of this question and later we draw the Bode plot. So let us see. G of h is equal to k 1 plus s by 100 upon 1 plus s 1 plus s by 10. So this is the question. Now replace s by j omega and put k is equal to 1. Therefore g of h is equal to 1 plus j omega 100 divided by j omega bracket 1 plus j omega bracket 1 plus j omega by 10. Now after this we have to make a table. The first row is of factors, second is corner frequency, that is CF, third is slope, fourth is cumulative slope, and the last one is phase angle. Now let us take the factor from this equation. The first factor is 1 upon j omega, second factor is 1 upon 1 plus j omega, third factor is 1 upon 1 plus j omega by 10, and the last factor is 1 plus j omega by 100. 1 plus j omega by 100. ये जो ऑर्डर है फैक्टर्स की, ये हमें इस तरह से लेना है जैसे 1 अपॉन जी ओमेगा, इसकी डिनोमिनेटर में रहेगा 0 जो हमें अज्यूम करना है. 1 अपॉन 1 प्लस जी ओमेगा, इसके डिनोमिनेटर में रहेगा 1, इसके 10, इसके 100. सो जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. So let us write here corner frequency. For this it is 0, that is ये 0 है, कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ n आएगा. For this 1, for this 10, for this 100. सभी प्रॉब्लम्स में हमें सिमिलरली ऐसे ही इसको सॉल्व करना है. Now let us write the slope of the all the factors.
Now let us write the slope of all the factors. For the first, let it is same -20 डेसिबल पर डिकेट्स. हर क्वेश्चन में हमें -20 से लेना है. जैसे जे ओमेगा डिनोमिनेटर में इसलिए -20, अगर ये न्यूमरेटर में होता तो +20. यहाँ भी डिनोमिनेटर में इसलिए -20, यहाँ भी न्यूमरेटर में इसलिए -20, सॉरी डिनोमिनेटर में इसलिए -20, और यहाँ जे ओमेगा न्यूमरेटर में इसलिए यहाँ 20. Now we have to calculate cumulative slope. For the first factor, cumulative slope is same as above, that is -20. For the second, -20 -20 -40. For the third, -40 -20 -60. And for the last one, -60 + 20, that is 40. Here we calculate the cumulative slopes of all the factors. Now we have to calculate the angles, phase angles for all these factors. So we have a formula for phase angle. Phase angle equals to tan inverse of imaginary part upon real part. For the first, imaginary part is j omega and real part is 0. So tan inverse of 0, that is -90. For second factor, it is minus tan inverse of j omega by 1. Here is 1 in denominator of j omega. For the third, minus tan inverse of j omega by 10. And for the last one, here j omega is in numerator, therefore here plus tan inverse j omega by 100. अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ एस स्क्वायर होता तो ये जे ओमेगा स्क्वायर आता. सो ये स्क्वायर होता तो जो 90 है वो 2 से मल्टीप्लाई होता और -20 भी 2 से मल्टीप्लाई होता. इफ अगर किसी प्रॉब्लम में यहाँ एस क्वेश्चन में एस स्क्वायर हो, क्यूब हो, अगर जैसे क्यूब होता तो ये यहाँ पे -90 इंटू 3 होता और ये स्लोप -20 इंटू 3 होता, यानी -60 होता. सो हमने अभी चार्ट बना लिया है मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करने के लिए. अब हमें फेज एंगल्स की वैल्यूज चाहिए जो हमें सेकंड प्लॉट बनाना पड़ेगा, फेज एंगल वर्सेस लॉग ओमेगा. सो जो हमें फेज एंगल्स की वैल्यू चाहिए ये हमने फेज एंगल्स यहाँ निकाल लिया है. अब इनमें जे ओमेगा की वैल्यू अज्यूम करके पुटअप करके हम सारे एंगल्स फाइंड आउट करेंगे. So now we are going to calculate phase angle. Here -90 minus tan inverse j omega by 1 minus tan inverse j omega by 10 plus tan inverse j omega by 100. सो फाई की वैल्यू हमने यहाँ से फेज एंगल जैसा ये था वैसे ही हमें यहाँ लिखना है. -90 minus tan inverse j omega by 1 minus tan inverse j omega by सो ये जैसे था हमें वैसे ही यहाँ लिखना है. फाई इज इक्वल टू -90 minus tan inverse j omega by 1 minus tan inverse j omega by 10 plus tan inverse j omega by 100. सो अब हमें इसे कैल्सी में सॉल्व करना पड़ेगा. सो कैल्सी में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मोड में चाहिए, फिर 7 टेबल में. अब ये f(x) इज इक्वल टू में ये पूरा इक्वेशन हमें इसमें लिखना है. जे ओमेगा के बदले में एक वेरिएबल लेना है x, जो हम बाद में उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे.
सो एक बार चेक कर लेते हैं। -90 माइनस tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस tan इनवर्स x बाय 10 प्लस tan इनवर्स x बाय 100। सो हमें इक्वल टू, हम अज्यूम कुछ भी, स्टार्टिंग पॉइंट हम अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, 0.01, 0.1 और 1, इनमें से इन तीनों में से हम कुछ भी स्टार्टिंग पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 0.01 लेता हूँ और हर प्रॉब्लम के लिए ये सेम ही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट 0.1 विद द डिफरेंस ऑफ 0.01। हाँ, तो अब ये जो वैल्यूज़ आई है ये अब हमें यहाँ लिखनी है। फॉर 0.01 इट इज़ -90.62। for 0.05 that is -93.12। for 0.08 that is -94.98। सिमिलरली हमें अभी फिर से, अब हमने 0.01 से 0.1 तक के 3 एंगल ले लिए, कोई भी मिडल में से 3। अब हमें वैसे ही 0.1 से 1 तक 0.1 के डिफरेंस से फिर से 3 एंगल, ऐसे 3 एंगल सिक्वेंशियली हमें निकालने हैं। तो 0.1 के लिए -96.22 for 0.5 that is -119.1 for 0.8 that is -132.7। सो ये 3 हो गए। 0.01 से 0.1 तक के 3 वैल्यू ले लिए और ये 0.1 से 1 तक कोई भी मिडल के 3 वैल्यू ले लिए। सिमिलरली मैंने कैलकुलेट करके रखे 1 से 10 तक के वैल्यूज़। फॉर 1 दैट इज़ -140.1, फॉर 5 दैट इज़ -192.3, फॉर 8 दैट इज़ -206.3। ये फेज एंगल्स है और ये लॉग ओमेगा है। नाउ सिमिलरली फ्रॉम बिटवीन 10 to 100, मिडल में के कोई भी 3 या 4 वैल्यू जितने आप चाहे ले सकते हैं। जितने ज़्यादा वैल्यूज़ आप लेंगे उतना आपका ग्राफ एक थोड़ा एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा आएगा। सो मैं यहाँ पे 10 के लिए जो मैंने निकाला है, कैलकुलेट किया है, 5 और 50 -23 0.9 for 80 -21 8.7 और मैंने एक एक्स्ट्रा ले लिया है जो कि एंड पॉइंट है हमारा 100 -218.7। अब हमने सारे फेज एंगल्स निकाल लिए। अब हमें जो मैग्नीट्यूड प्लॉट जो हम ड्रॉ करने वाले हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 20 log m अब इस फॉर्मूले में m की वैल्यू जो रहेंगी, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू होती k के अलावा, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में ले लेते, लेकिन यहाँ पे k है जो हमने अज्यूम 1 किया है। तो m निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू k अपॉन अंडर रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस imaginary part square. So from this formula we calculate m, that is k is 1, real part is j omega square plus imaginary part is 0 square। हम स्टार्टिंग पॉइंट निकाल रहे हैं इसलिए फर्स्ट फैक्टर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू रहेंगे वो हम फर्स्ट फैक्टर के लिए कंसिडर करेंगे। सो m इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा, जो कि जे ओमेगा हमें अब अज्यूम करना है
0.01, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा जो हमने यहाँ पर लिया था 0.01 से स्टार्ट किया है, इसलिए हमें जे ओमेगा की वैल्यू भी 0.01 लेनी पड़ेगी, therefore 1/0.01। सो इस m की वैल्यू अगर हम इस y के फॉर्मूले में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 20 log 1/0.01, तो y की वैल्यू आएंगी 40 डेसिबल्स। अब हमने सारे वैल्यूज सारे कैलकुलेशंस कर लिया है। अब हमें सेमी लॉग ग्राफ पे बोडे प्लॉट यानी मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट दोनों ड्रॉ करने हैं, और जो वैल्यूज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो सारी कैलकुलेट करके सिस्टम स्टेबल है या नहीं ये हमें कैलकुलेट करना है। So this is the semi-log graph. Now we have to calculate the magnitude plot and the phase plot. For this, first of all, we have to calculate the line directions for the magnitude plot, which is almost similar in all the problems. So let us draw. So this is 20 decibels, 40 decibels, 60 decibels, -20, -40, -60. On this axis, take log omega. As in this table we calculate from 0 to 1, 1 to 10, 10 to 100, but in this phase angle table we start from 0.01. therefore take this scale 0.01, 0.01 के बाद डायरेक्ट 1, 10 फिर 100, लेकिन 1 यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 0.1 लेंगे और यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे थोड़ा क्लियर और प्रिसियस बनेगा। सो 1, 10, 100। ऑन एक्स एक्सिस फर्स्ट हमें मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करना है। सो इतने में हाफ इसमें मैग्नीट्यूड प्लॉट की स्केल आएंगी और हाफ इसमें फेस प्लॉट के लिए एंगल्स की स्केल, एंगल्स की रीडिंग यहाँ पर आएंगी, और मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए स्लोप की रीडिंग यहाँ पर आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट माइनस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इट 40, 20, -20, 40. As we calculate here, starting point is y is equal to 40 decibels. Y is equal to 40 decibels. From first factor to up to 1, and from second factor up to 1, corner frequency is 1. From NA to 1, that is the slope is this -20. So therefore take the -20 at this from 40. हमें रोलर स्केल -20 पे रख के पैरेलल लाना है यहाँ तक और ड्रॉ करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी किया है 1 तक। फ्रॉम सेकेंड फैक्टर टू थर्ड फैक्टर at from 1 to 10, it means it is -40. see -40 तक लेके जाना है। जो -40 है उसको पैरेलली यहाँ से लाना है, फ्रॉम 1 से 10 तक -40।
ये हो गया -40 फ्रॉम 10 to 100 -60 फ्रॉम 10 to 100 -60 -60 को पैरेलल लाना है यहाँ तक। तो 100 के बाद ये इन्फिनिटी जाएगा, ये मैग्नीट्यूड प्लॉट यहीं तक रहेगा। अब हमें ड्रॉ करना है फेस प्लॉट। सो एंगल हम एक्स एक्सिस पर लेंगे स्केल पर। उससे पहले हम 0 से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गए 0 से हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम स्केल फेस एंगल्स लेंगे। हमने जो फेस एंगल्स कैलकुलेट किए वो मोस्टली 90 के पास स्टार्ट होते हैं और 218.7 तक एंड होते हैं। सो हम इस हिसाब से स्केल लेंगे, एक लाइन छोड़ के -90 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस स्केल के हिसाब से हम यहाँ पे इसकी रीडिंग्स लिखेंगे। -120 -180 सो 240 के ऊपर अंदर ये सब, तो इतने इसमें हमारा पूरा ग्राफ आ जाएगा। सो हमने ये वाई एक्सिस पर लॉग ओमेगा लिया है 0.01 0.1 1 10 100। अब हमें ये जो सारी वैल्यूज़ है ये सारे पॉइंट्स हमें इस ग्राफ पर पॉइंट करने हैं और ग्राफ ड्रॉ करना है। सो एट 0.01 दैट इज -90.62 जो यहीं पे आएगा। 0.05 -93.12 30405। फाइव सिक्स सेवन एट 0.08। सिमिलरली हम ये सारे ऐसे ही इस पे ड्रॉ कर लेंगे। अब सिमिलरली हमने सारे प्लॉट्स यहाँ पर प्लॉट कर लिए हैं, सारे पॉइंट्स अब हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को जोड़ देना है। ये हो गया हमारा फेस प्लॉट और ये हो गया हमारा मार्जिनल प्लॉट। जो -180 डिग्री की लाइन है ये 180 है, 90 -120 150 30 डिग्री 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 30 डिग्री की हमने स्केल ली थी। सो -180 की लाइन को हमें डार्क करना पड़ेगा। अभी फेस प्लॉट -180 की लाइन को जहाँ पे क्रॉस करता है इस पॉइंट को, और मार्जिनल प्लॉट 0 की लाइन को जहाँ क्रॉस करता है इस पॉइंट को, दोनों को मार्क कर लेंगे। और यहाँ से एक लाइन सीधा नीचे लाएंगे। सो जो मार्जिनल प्लॉट 0 को जहाँ कट करता है उसको हम डायरेक्ट नीचे लाते हैं। ये हो गया 1, तो ये हो गया हमारा ओमेगा GC। और फेस प्लॉट जहाँ पे -180 को कट करता है उसको हम डायरेक्ट नीचे लाएंगे। ये हो गया हमारा ओमेगा PC। नाउ ये जो लाइन हमने नीचे लाई है ये फेस प्लॉट को जहाँ कट करती है वहाँ से हम लाइन इसको हॉरिजॉन्टल यहाँ लेके जाएंगे। तो ये हो गया हमारा फाई। और फेस प्लॉट जहाँ -180 की लाइन को कट करता है इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे और इसे
हॉरिजॉन्टल लेके जाएंगे, ये हो गया हमारा GM. Now from this graph we calculate that phi is equal to -140. यहाँ पे ये जो मार्जिनल प्लॉट जहाँ पे ज़ीरो को क्रॉस करता है उसको नीचे लाके जो फेस प्लॉट को टच करेगा उसको हॉरिजॉन्टल लेके जाके जो वैल्यू मिलेंगे वो फाई, वो यहाँ ग्राफ से मिली हमें -140. देयरफॉर फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 प्लस फाई. फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो फेज मार्जिन हमने कैलकुलेट किया 40 डिग्री. नाउ गेन मार्जिन जो हमें यहाँ पे मिला है उसकी वैल्यू है -24. गेन मार्जिन की वैल्यू मिली -24 डेसिबल पर डिकेट्स. और यहाँ पे ओमेगा GC और ओमेगा PC. ओमेगा GC इज इक्वल टू 1, ओमेगा PC इज इक्वल टू 3. From this graph we can conclude that phase margin is positive value and omega GC is less than omega PC. Therefore, the given system is stable. So thank you very much. If you like the video, please like, share and subscribe.